Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Retail inflation eases to 5.02% in September 2023. Index of industrial production jumps to 10.3% in the month of August. Domestic share indices end marginally low. Sensex closes at 66,408 points. Nifty settles at 19,794 level. And world believes 21st century will be India's century, says Prime Minister Narendra Modi. खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2023 में कम होकर 5.02% दर्ज हुई। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में अगस्त के दौरान 10.3% की भारी वृद्धि दर्ज हुई। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली गिरावट में रहे। सेंसेक्स 66,408 पर और निफ्टी 19,794 के स्तर पर हुए बंद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व को ये विश्वास है कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी। Let's begin with the top story of the day. Retail inflation eased to 5.02% in September this year, according to the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today. On the other side, the index of industrial production jumped to 14-month high of 10.3% in August this year, as compared to 5.7% in July 2023. Harveer ji, we have seen a big drop in inflation, as was being expected by analysts. We've seen almost more than a 1% drop in the inflation prices, and one of the reasons being that the food price inflation has come down almost 3%. It was 9.94% in August, and now it's 6.56%. How do you see this? Actually, you are right that the major drop in the inflation number is because of lower prices of food products. So, and we have to see that even before that, when inflation went up, some certain products were behind that for higher prices and all on, and the impact on inflation. So now the prices cooled down, particularly vegetables and fruit prices has come down. Still cereal prices are high, but other products prices are low. And it is reflecting in the number. And it is a good relief for common man also. And we have seen one important thing, that due to the global price decrease in edible oil prices, our oil prices are coming down. So except pulses or food grain prices, other product prices are low in food basket. So that is a good sign for even we see even food, other items of food, non-veg and all, they're also not very high in that sense. So yes. So आपको लगता है कि जो फूड प्राइसेस नीचे आए हैं, आरबीआई लगातार कोशिश कर रही है इंटरेस्ट रेट्स के माध्यम से, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के माध्यम से, कि जो सीपीआई बढ़ गई थी लास्ट मंथ, इट वाज 6.83%, उसको नीचे लाने के एफर्ट्स लगातार जारी हैं। उसके साथ ही साथ जो फिस्कल एफर्ट्स किए हैं सरकार ने फूड मैनेजमेंट को लेकर, आपको लगता है ये सब मिलजुल कर हम इफेक्ट देख रहे हैं? एक्चुअली देखिए, फूड में जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो मॉनेटरी मेजर का उतना नहीं है, सप्लाई साइड इम्पैक्ट है। बिकॉज इन प्रोडक्ट्स लाइक फूड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन, इम्पोर्ट्स, टैरिफ्स, ये सारा सप्लाई मैनेजमेंट है। इसमें आप क्या है कि अगर दाम ज़्यादा होंगे तब भी लोग उनको खरीदेंगे, लेकिन अगर आप सप्लाई आप ईज करेंगे, जैसे कि आपका
टोमेटो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा, बट देन सप्लाई ईज हो गया तो नाउ प्राइसेस आर वेरी लो. सेम थिंग उसका एक डर था कि इससे ऑनियन प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बट गवर्नमेंट ने टाइमली इंटरवीन किया और जो बफर स्टॉक था ऑनियन का वो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू उसको मार्केट में ऑफलोड किया. तो ये दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में एडिबल ऑयल का सप्लाई ईज हुआ. प्लस जो वेजिटेबल प्रोडक्शन का एक होता है कि सीजन होता, नाउ इट्स अ मोर प्रोडक्शन सीजन फॉर वेजिटेबल्स. सो ये सप्लाई ईज होने का एक इम्पैक्ट आया, प्लस मैनेजमेंट का, जैसे मैंने ऑनियन के बारे में आपको बोला, एडिबल ऑयल के बारे में, बिकॉज भी नीचे आया है. और स्टॉक्स जो बफर स्टॉक्स है हाँ, वो उनका उसका, भी मैनेजमेंट. दैट्स व्हाई स्ट्रेटेजिकली बफर स्टॉक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि कब आपको मैनेज करना है, क्योंकि जो सडनली स्पाइक होता है या जो मिडिलमैन या दूसरे लोग जो उसका अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं, अगर पब्लिक स्टॉक्स हैं उससे आप सप्लाई ऑगमेंट करते हैं तो फिर कोई उस तरीके का गैर जरूरी फायदा नहीं उठा पाता. Ji. But though CPI inflation has come down, but the conflict which is happening right now in the Middle East between Israel and Palestine and its impact on the international crude prices, that is at some point going to exert pressure on inflation, and it's going to have an effect or impact on inflation, CPI inflation? Yeah, actually we have seen since last few weeks, I can say that the crude prices are going up. Any increase in crude price is affecting us. If it goes about now around $95 or so, and we import more than 85% of our requirement of crude and energy resources, so it directly affects us. And rupee also depreciated, so it adds the cost. And this is called import inflation, because we are importing because at a higher price. Like we have pulses, we are importing pulses. So it is basically, this is imported inflation, because we are buying at a higher cost, and India is the I think biggest importer of pulses, and we are the producer also, biggest producer in the world, but our demand is high and production is not matching the demand. So these kind of things affects us where we import that. So in a way it's the next few weeks and the month are going to be challenging from inflation management point of view. We'll have to constantly, the RBI and the government, everybody will have to constantly monitor what is happening in the Middle East, because inflation would largely depend on how things develop there. Yes, actually next few days are very crucial. If this basically limited conflict basically converts into war and some other countries also get involved, then definitely there will be an impact on supply side. Not only you see the supply disruption affects this inflation on the other side for a pressure on inflation. Last time it was Ukraine and Russia war, and which continuously affected the supply of fertilizer, food, oil. So it was a big impact on globally. Before that it was COVID, which affected. So now it is additional that war is going on, but now things have moved on the normal side despite the war is going on between Russia and Ukraine. But now this conflict in Middle East, and Middle East is very important geographical area in terms of crude oil production. Yes. So, आपको लगता है कि अगर ये जो दायरा है इस वॉर का, अगर वो सीमित रहता है जो अभी करंट सिचुएशन है, तो हमें इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट अगर इसका दायरा बढ़ता है, लेट्स ऑल होप ऐसा ना हो, तब एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसमें जैसे आप कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर और अपवर्ड प्रेशर पड़ सकता है. हाँ, देखिए, क्योंकि ये जो इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों का वहाँ पर है वो कोई बड़े सप्लायर नहीं है. जी. ना तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में जो कमोडिटीज़ हैं या और अदर कमोडिटीज़ या क्रूड में, तो वो ना प्रोड्यूसर है ना बड़े सप्लायर है. बट द एरिया अराउंड दैट, जो कंट्री आसपास के हैं, वो खास तौर से एनर्जी रिसोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है. प्लस जो मूवमेंट है, बिकॉज शिप्स मूवमेंट दैट ऑल्सो मूव्स थ्रू दिस गल्फ्स एंड दैट एरिया. तो ये अगर काफ़ी टेंशन हो जाता है तो फिर एक रीजन ये भी होता है कि रिस्क बढ़ जाता है, और रिस्क हमेशा जो है कॉस्ट को बढ़ा देता है. तो फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी समय से एक नेचुरली सभी की जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनकी तो यही इच्छा होती है कि प्राइस नीचे आए. सो आपको लगता है कि अभी जो रिटेल प्राइसेस हैं भारत में, अभी उनके नीचे आने के जो चांसेस हैं वो अभी बहुत कम है इस पूरी इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए, या आपको लगता है कि एक्साइज कट और करने की सरकार के पास अभी इतनी कैपेसिटी है, उन्होंने ऑलरेडी किया है?
देखिए ये तो सरकार को अपने फाइनेंसेस और अपना जी। फिस्कल सिचुएशन देखना होगा कि उनके पास इस तरह का मेजर लेने का है क्या अभी, रूम है क्या उनके पास। अदरवाइज जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें तो नहीं लगता कि कोई प्राइस कट होने का इमीडिएट फ्यूचर में कोई चांस बनता है, बिकॉज प्राइसेस अगर और बढ़ती हैं तो ये तो और प्रेशर होगा। इनफैक्ट अगर हम देखें जो अभी सरकार ने स्टेप उठाया, जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उस पे जो उन्होंने प्राइस कट किया, जो एक कॉमन मैन के लिए बहुत ही एक एसेंशियल जो है हाउस होल्ड चलाने के लिए एक इनपुट है, आपको लगता है कि वो उसने भी इन्फ्लेशन को एक राहत दी होगी? देखिए क्योंकि ये फ्यूल का एक बड़ा पार्ट है, डोमेस्टिक जो किचन के लिए रिक्वायरमेंट जो है फ्यूल की, उसमें और उसमें जो दाम घटेगा उसका सीधा रिफ्लेक्शन जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर हमें दिखेगा। From the trade point of view, Middle East is a very important, area for India because we have a large number of people who are working there. India gets, I think, maximum remittances from that area. So from that point of view also, this conflict which is happening from the larger point of view of economics, finance and trade, it becomes very important to monitor and, to keep watch on. No, you are right. We have large number of our immigrants there in that those who are making money and sending the remittance to the country, and now it is not earlier Keralite were more, but now from all part of the country people are working in Gulf and in different capacity because these countries have become the center of finance and trade, and it is a very important trade hub for us because Indian goods reach there, and from there goods as a transit point goes to Africa and even some Asian countries where we don't have direct export to them, but our products were coming through this transit point to these countries also. So we have it's basically this area is a very big trade partner for us, and we have big potential there continuously. हरवीर जी, जैसे अभी अनुभा कह रही थी कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कई इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंगली आया है 5.02%, बहुत राहत है आरबीआई के लिए। और आरबीआई के लिए कहें तो एक तरह से दिवाली पहले आ गई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14 मंथ हाई पे पहुंच गया है 10.3%। आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ में जो मजबूत संकेत दिख रहे हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के जो संकेत दिख रहे हैं, इससे आरबीआई को भी बहुत बल मिलेगा और हम आशा कर सकते हैं कि एटलीस्ट रेट राइजेस तो नहीं होंगे अगर रेट कट्स जल्दी नहीं भी हुए तो? नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आरबीआई का जो फोकस रहता है कि इन्फ्लेशन का एक तो उनका एक बैंड है 4% ±2 उसके अंदर, तो अभी उसके बाहर थी वो, उसके अंदर तो आ गई है। 4% के नज़दीक कोई आइडियल होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है तो उनका कि अगर आप देखो आरबीआई ने पोज रखा उसको लेकर के, जो पॉलिसी रेट को लेकर के, बिकॉज उन्होंने ग्रोथ को फोकस किया, तो ग्रोथ प्रायोरिटी पे था एंड ग्रोथ इज कमिंग। अगर आपका क्रेडिट ऑप्टेक बढ़ रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो फिर आरबीआई की जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ वर्किंग। और जो हमारे नंबर भी जो हैं इस साल के भी और नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के लिए भी जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी काफ़ी हेल्दी नंबर इंडियन ग्रोथ के दिए। तो ये जो इकोनॉमी है उसके मोमेंटम का एक इंडिकेशन है। अगर आप देखें ऑटो सेल्स काफ़ी बड़ा है, और अब क्या है कि पहले लग रहा था कि इरेटिक मानसून है उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा, बट ओवरऑल जो डेफिसिट है वो करीब 6% का था, बट रीजनल लेवल पर कुछ इश्यूज हैं। अदरवाइज जो जैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन है जैसे खरीफ का भी है या बाकी, तो उसमें जो सप्लाई साइड को चैलेंज नहीं आ रहा है इम्पैक्ट, क्योंकि एक ये था कि डेफिसिट रेनफॉल है, बट कुछ जगहों पे काफ़ी सारा फ्लड आता था। इस साल फ्लड का केसेस बहुत कम है, तो वो जो लॉस होता था वो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो रहा है, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो खरीफ विल ऑल्सो बी रीजनेबली ओके। That's exactly the point I was about to ask you, that, the governor, RBI Governor Shaktikanta Das, in his commentary had mentioned that monsoon is also, something they're watching out for. And this year, like you just mentioned, it's been erratic monsoon. Somewhere we have had floods, somewhere there's been a deficit. So right now,
thankfully the food price inflation is down and has come down more than 3%. Should we expect even though there's been deficit rainfall, should we expect the impact of this on inflation, food inflation coming down even further? Actually, it depends on product to product. There are some products in the basket where the inflation will not come so heavily down. Like as I mentioned about the cereal inflation, sugar, pulses. Pulses are part of like cereal, if we say. So, and the milk prices. Milk prices may ease, but if not ease, but there will be no increase because supply is good. Global prices again coming down on fat and dairy products prices are coming down. So, in that case, if you want to export, so it will be competitive. And so they may find the market in the domestic market to sell their produce. So, supply will remain good. So, on some products we are very comfortable. On some products we have to wait and watch and keep our management better. और बस एक लास्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 10.3% डबल फिगर्स में पहुंच गया है, 14 मंथ हाई. अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो कोविड के टाइम में भी बहुत मजबूती दिखाई एग्रीकल्चर सेक्टर ने. आपको लगता है कि वो मजबूती आगे भी बनी रहेगी? देखिए, पिछले कई साल से एग्रीकल्चर 4, 4.5, 3.5% का ग्रोथ है. तो मुझे लगता है कि वो जो ग्रोथ है 3% से ज़्यादा का, वो शायद कंटिन्यू रहेगा. आइए अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ. वैश्विक संकेत सकारात्मक रहने के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांकों में हल्की गिरावट दर्ज हुई. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.1% की मंदी से 65 अंक कम होकर 66,408 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.09% के नुकसान से 17 अंकों की गिरावट दर्ज करते हुए 19,794 पर बंद हुआ. हालांकि व्यापक बाजार की बात करें तो यहां बढ़त का रुख था. मिड कैप सूचकांक 0.3% की वृद्धि में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.6% की बढ़त पर बंद हुआ. Key domestic stock indices had a flat day and ended marginally lower today, while the global cues were positive. The BSE Sensex lost 65 points or 0.10% to close at 66,408. The NSE Nifty slipped 17 points or 0.09% to close at 19,794. However, in the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.3% and the small-cap index rose 0.60%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 16 companies appreciated while 14 companies declined. Maruti climbed 1.6%, NTPC gained 1.4%, and Power Grid rose 1.2%. On the other hand, Tech Mahindra declined 2.7%, Infosys and TCS both fell 1.9% each. In sectoral indices at the BSE, 16 sectors logged gains while 4 witnessed losses. Oil and gas index gained 1.4%, energy sector rose 1.2%, and metal index added 0.9%. On the other side, IT sector declined 1.5%, tech index fell 1.4%, and reality sector slipped 0.2%. The overall market breadth was positive as shares of 2,168 companies gained, while those of 1,501 companies declined. A total of 123 companies' shares remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 24 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 105.71 पर था. हरवीर जी, अगर हम इस सप्ताह को देखें, आज हालांकि फ्लैटिश था बाजार, लेकिन मंडे को एक जो रिएक्शन दिया बाजार ने इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट को, उसके बाद बाजार काफी संभला है और अभी 413 नेट इंक्रीज हुआ है इस हफ्ते में. सो कैसे देखते हैं आप आगे बाजार, ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा बाजार को? एक्चुअली देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि इमीडिएट रिएक्शन आया बाजार में, उसके बाद मार्केट ने पूरा एक होता है कि कैलकुलेशन देखा कि किस तरीके से है, और बाकी भी फैक्टर्स हैं उसके पीछे. जैसे यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर काफ़ी बेहतर हुए हैं और यूएस फेड का रेट्स में इंक्रीज करने का जो एक चांस है वो कम हुआ है. तो ये एक इम्पैक्ट मार्केट में हमें ग्लोबली भी देखने को मिल रहा है, हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहा है. बट एट द सेम टाइम अभी थोड़ा सा कोशिश अप्रोच मार्केट में रहेगा. एंड हरवीर जी, डू यू थिंक दैट टुडे, ऑफ कोर्स, coming back to today's indices, today's numbers, we've seen a decline in IT sector. Do you think that is also the impact of the Q2 results that have come out of the IT companies? Yesterday we saw TCS numbers came out. Today, of course, Infosys and HCL have come out. And
not up to the market expectations in some cases, especially TCS and Infosys. So are we seeing the impact of that as well? Actually, one of the reasons is that the future prospects or the kind of guidance they have given for future, that is not very good. So at the same time, results are important, second quarter, and overall market will get affected due to this, what kind of result we are seeing, because this is a result season. So market will remain cautious by seeing what kind of numbers are coming from different sectors. But what about the reality sector? Because we had been seeing good results, coming out of the reality sector was doing pretty well, but now we are seeing a slip. Like today we saw a 0.2% fall in the reality sector. See, actually, in last few years, realty sector was in a very bad shape, and many big realty companies either went to NCLT or defaulted or went into disputes. But now, if we see the post-COVID in the last 1 year, recovery is very fast in that sector, and the number of ready units, basically inventory is coming down, prices has gone up, but at the same time prices also has gone, the cost is, despite that demand is coming. And given the fact that some analysts believe that the period when the quarter results are being declared, that is normally a period of volatility, high volatility for the market. So in such a scenario, what would be your advice to the investors? I think you are right that in such kind of volatility, particularly small and individual investors must be cautious and should not go with the flow. They must take their own call on a very well-informed decision and calculated way. और अभी आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स आए हैं जो एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम रहे हैं, बाकी सेक्टर से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, जिस तरह के नंबर्स हैं, अगर आप देखो, और मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग देख रहे हैं, ख़ासतौर से ऑटो सेक्टर तो रिवाइव हो गया है, उनका काफ़ी अच्छा डिमांड है, रियल्टी में भी बेहतर हुआ है, बट अभी एफएमसीजी सेक्टर उस तरीके से, पर्टिकुलरली रूरल डिमांड अभी उस तरीके से रिकवरी पे नहीं आई है. So the company related to that and basically companies related to agriculture sector, उनका भी थोड़ा बेहतर है, because नंबर वहाँ से अच्छा ग्रोथ है, तो डिमांड उस तरीके का जो एग्रोकेमिकल है, फर्टिलाइजर, दैट इज गुड. और बहुत ब्रीफली, एफआईआईज आपको लगता है कि वो वापस भारतीय बाजार में लौटेंगे एज नेट बायर्स, क्योंकि अभी पिछले 16 सेशन से वो नेट सेलर्स रहे हैं? आई थिंक वो अच्छा प्रॉफिट लेकर के वो लोग निकले हैं, बिकॉज मार्केट मूव एट लेवल एंड दे बेसिकली मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ दैट. इट विल डिपेंड कि आपका जो यूएस में जो फेड है या जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो किस तरह रहती हैं, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है. अगर उनको लगेगा देन देयर इज अगेन ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन द मार्केट, तभी वो लोग आए. You just mentioned the FMCG sector, which is not doing so well, but given the fact that we are in the now festive season, do you expect the FMCG are the it's the one sector that gains during that gets profits during the festive season? So do you see an improvement in the FMCG sector profits? Actually, yes, but one important factor is that because FMCG sector, the major thing is the food products, and in that case, inflationary pressure actually was very high on food side. So demand is not like that. It's not picking up in that way. सो लेट्स होप कि फेस्टिव सीजन चीयर लाए और पिकअप करे बाजार भी और शेयर बाजार भी. चलते हैं अगली खबर की ओर. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व को विश्वास है कि ये शताब्दी भारत की शताब्दी होगी. कौशल दीक्षांत समारोह को वीडियो मैसेज द्वारा संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कौशल दीक्षांत समारोह आज के भारत की प्राथमिकताओं को दर्शाता है. श्री मोदी ने कहा कि कोई भी देश मजबूत युवा शक्ति के बल पर अधिक विकास कर पाता है, और प्राकृतिक और खनिज संसाधन या देश के लंबे समुद्र तट जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का पूरा फायदा उठाने के लिए युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण में भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मर्चेंडाइज के निर्यात, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा रक्षा क्षेत्र में निर्यात और विनिर्माण में नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, और साथ ही अंतरिक्ष, स्टार्टअप्स,
ड्रोन्स, एनिमेशन, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और कई अन्य क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पूरे विश्व को यह विश्वास है कि ये शताब्दी भारत की शताब्दी होगी। उन्होंने बताया कि G20 सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर स्किल मैपिंग से जुड़े भारत के प्रस्ताव को हाल में स्वीकार कर लिया गया। आने वाले समय में युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में ये पहल सहायक होगी। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में कौशल विकास संस्थानों के लिए संयुक्त दीक्षांत की पहल की सराहना की और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जुड़े हजारों युवाओं तथा युवा प्रशिक्षुओं को बधाई दी। हम हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि वो हमारा एक बहुत बड़ा संबल है, लेकिन उसके लिए जो स्किलिंग है उस पर जो जोर दिया जाना ज़रूरी था, आपको लगता है वो फाइनली दिखाई दे रहा है और वो बहुत ज़रूरी है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर कौशल नहीं होगा, स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा, आपके पास अगर यूथ है और आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात अगर आप करेंगे, बिना प्रशिक्षित लोगों के आप उस डिविडेंड को नहीं ले सकते। और ये तभी संभव है जब आप लगातार जो स्किल का इम्प्रूवमेंट करें, स्किल डेवलपमेंट करें और डिफरेंट सेक्टर्स में करें। सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, आपको हर क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि सिर्फ स्कूलिंग के भरोसे नहीं हो सकता। उनको एडिशनल अपने आप को स्किल डेवलप करनी है, अपने आप को तैयार करने के लिए, उस नए कामों के लिए जहाँ अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर वो उसके लायक अपने आप को बना पाएंगे, तब एक पूरा फायदा उनको भी होगा और देश को भी होगा। Very small question. The Prime Minister said that the whole world is of the belief that this century is going to be India's century. So the kind of results that we're seeing, the way our markets are behaving, the industrial production figures that we're seeing, the growth rate that has been predicted for India by various organizations, it's kind of reiterating the fact what the Prime Minister is saying today. The numbers are very good on all the fronts. If you see that inflation is under control, our growth numbers are much better in all large economies. We are growing faster than anybody, all countries. So it is good sign for the country. अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। अमेरिका के उपभोक्ता मूल्यों से जुड़े आंकड़ों के इंतजार और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मतभेद पर निवेशकों की सतर्क निगरानी के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.9% की भारी वृद्धि में रहा। जापान का निक्केई सूचकांक 1.7% बढ़ा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.2% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.9% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.8% बढ़े। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.8% की बढ़त पर था। जर्मनी का डैक्स 0.6% और फ्रांस का कैक 0.5% की बढ़त पर थे। Moving on to the US markets, Wall Street's major indices closed higher yesterday after choppy session, with the release of minutes from the US Federal Reserve's last meeting showing caution among policymakers that helped fuel investors' hopes that rates would stay steady. Dow Jones Industrial Average added 65.57 points or 0.2%. The S&P 500 gained 18.71 points or 0.4%, and the Nasdaq Composite Index rose 96.83 points or 0.7%. And चले कमोडिटीज की ओर, अनुभव। Sure. Oil prices rose more than 1%, reversing earlier falls on expectations that US interest rates had peaked, but a lower demand growth forecast for next year from the International Energy Agency and higher US inventories limited further gains. In intraday trade, Brent crude was trading at $86.85 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $84.35 per barrel when reports last came in. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना 290 रुपए की बढ़त से 58,230 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 525 रुपए की तेजी से 69,955 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों की बात करें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,895.70 प्रति आउंस पर था। चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $22.32 प्रति आउंस पर थी। आपका ब्रीफ सा हम चाहेंगे प्रतिक्रिया इस बात पर, आपको क्या लगता है अभी रिसेशन के कितने चांसेस हैं यूएस में? आपको लगता है कि सिचुएशन मजबूत हो रही है दिन ब दिन? मेरे ख्याल से रिसेशन की जो फियर थी वो काफ़ी कम हुई है, हालांकि लगातार उसका इंडिकेशन था और इस तरीके के लोग ऑब्जर्वर्स का ये कहना था कि रिसेशन आ सकता, बट इट डजंट लुक लाइक, क्योंकि ग्रोथ बेटर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, तो रिसेशन का मुझे लगता नहीं कि उस तरह का कोई चांस अभी यूएस। And the US Fed officials are also giving those kind of indications, very dovish comments coming out of the US Fed officials meetings. समय हमें इजाजत नहीं देगा अनुभा कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, सो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे हरवीर जी। आप स्टूडियो में आए और आपने विभिन्न विषयों पर हमारे साथ चर्चा की, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Retail inflation eases to 5.02% in September 2023. Index of industrial production jumps to 10.3% in month of August. Domestic share indices end marginally low. Sensex closes at 66,408. Nifty settles at 19,794 level. And world believes 21st century will be India's century, says Prime Minister Narendra Modi. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 6:30 with your favorite program, Market Mantra. Till then, from the entire team, goodbye, namaskar. Namaskar. Market Mantra.